very good morning, my dear children. I welcome you all to the English class. Children, in our previous class, we have been learning the new verb, or you can say the helping verbs. I told you these helping verbs have different names. They are also called as be verbs. They are also called as linking words, right? So linking verbs or helping verbs or be verbs are nothing but the verbs that are used before the main verb or the root verb, that is action words, right? So what have we learned yet now? Well, we have learned the usage of is, am and are. Where we use it? When we are talking about the present time. जब हम किसी present time की, जो समय अभी है, उसकी बात कर रहे होते हैं, तो हम main verb के साथ क्या use करते हैं? is, am या are. is और am use होता है I के साथ, है ना? am and is use होता है one को denote करने के लिए. Anything which is one we use is, like I am talking to you, I am teaching, or children, or like this book. If I ask about, if I am saying anything about this book, the book is in my hand, the book is in my hand, or the or the iCard is blue in color, right? So anything when we are talking about one in number, we are using is, right? For things when we are talking about myself, I is used, then we are saying am. And when we are talking about more than one, that can be 2, that can be 4, that can be 8, that can be 10 also, then we are using are. Like children are studying, right? Rohan and Mohan are going for a walk. So we have now learned for things, helping verbs that are used in present tense. So now we are going to learn the helping verbs that are used in past tense, बीते हुए समय में. जैसे कल आपने क्या क्या किया था? कल आपने खाना खाया, कल आपने नहाया, कल आपने सोया, राइट? और आज आप क्या कर रहे हैं? आज आप क्लास अटेंड कर रहे हैं. तो हम बात करेंगे बीते हुए कल की, और उसे बोलने के लिए हम कौन सा वर्ब यूज करते हैं? Let me just show you the screen. And here it is. So we are going to learn the use of was and were in the sentence. Okay, this is lesson number 11 in your grammar book. So what we are going to learn today? Was and the use of was and were. Was and were. So in this module we will learn about the use of was and were, how to use was and how to use were. So children, in this, as I told you, these are also called as be verbs. This particular verb, that is was and were, are used only in past tense. जब हम किसी चीज की बात बता रहे हैं जो कि बीते हुए समय में हुआ था, वो चाहे एक दिन पहले हुआ था, एक घंटे पहले हुआ था, एक साल पहले हुआ था, एक महीने पहले हुआ था, या एक मिनट पहले हुआ था, लेकिन वो समय बीत गया है, which has gone, अब वो आने वाला नहीं है वो समय, तो उसे हम कहते हैं past tense, right? तो वहाँ हम यूज करेंगे was या फिर were. अब was को कहाँ यूज करेंगे? Was is used when we are talking anything about which is one in number. जब कोई एक चीज की हम बात कर रहे हैं, then we are going to use was. Like for an example, Rita was absent yesterday. कल रीता absent थी, right? I was not in the class
यस लास्ट डे, मैं लास्ट डे क्लास में नहीं था। I was residing in Delhi last year. मैं last year, last पिछले साल दिल्ली में रहता था, right? अगर उसके जगह किसी के नेम के जगह हम प्रोनाउन वर्ड्स यूज कर रहे हैं, तो जैसे लाइक आई, ही, शी या इट के साथ हम वॉज यूज करते हैं। अब जैसे प्रेजेंट टेंस में हम क्या कर रहे थे, आई के साथ हम एम यूज कर रहे थे, और ही, शी और इट के साथ हम इज यूज कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर बहुत सिंपल है, एनीथिंग विच इज वन। आई वन है, ही मीन्स वन बॉय, शी मीन्स वन गर्ल एंड इट मीन्स वन थिंग और वन एनिमल। तो एनीथिंग विच इज वन, हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, वॉज, राइट? लाइक आई वॉज sleeping, he was listening to his teacher, she was dancing yesterday, it was raining very heavily last night, right? So anything which has happened in the past time, things which has happened in the time which has passed away, जो चीज बीत गया है उसमें हम was use करते हैं। Now we use were when we are talking about more than one thing। हम एक से ज़्यादा चीज़ या एक से ज़्यादा पर्सन की, एक से ज़्यादा एनिमल या एक से ज़्यादा थिंग की बात करते हैं, तो वहाँ हम क्या यूज़ करते हैं, were। लाइक सी, रोहन एंड सोहन were absent yesterday। रोहन और सोहन एब्सेंट थे कल, राइट? रीता एंड मोहन were not in the class yesterday, or were not attending the class in the first period। तो रीता और मोहन ने क्लास अटेंड नहीं किया था फर्स्ट पीरियड में, राइट? अब फर्स्ट पीरियड तो बीत गया, राइट? सो दिस इज हाउ वी आर यूजिंग वर्ड। लाइक सी, प्रोनाउन वर्ड्स अगर जैसे होते हैं वी कहाँ यूज होता है, जब हम बोलते हैं मोर देन वन। हम लोग, यू भी प्लूरल में काउंट होता है, आप लोग, आप या तुम, दे वे लोग, राइट? सो विद द वर्ड्स, प्रोनाउन वर्ड्स लाइक वी, you and they, we use were। Why we use were? Because it is used for more than one thing, that is in plural in number। When the things are plural in number, we are going to use were, and when the things are one in number, we are going to use was, right? So make the thing very clear beta। was होगा वन के लिए, वर होगा मैनी के लिए, और दोनों चीजों को हम कौन से टेंस में यूज करेंगे, बीते हुए समय में, पास्ट टेंस की बात जब होगी, राइट? नाउ लेट्स सी फर्दर। सो हमने क्या सीखा था पहले, एम इज और आर यूज सीखा था, राइट? एम इज आर किस लिए यूज होता है, जब हम प्रेजेंट टाइम में बात कुछ बता रहे हैं, राइट? तो प्रेजेंट टाइम में हमने एम और यूज किया था कब, जब एनीथिंग विच आई एम टॉकिंग अबाउट वन इन नंबर, एक चीज था। लेकिन जब हम वहां पे पास्ट टाइम की बात कर रहे हैं, जो बीत गया है, तो वहां हम क्या यूज करेंगे, एम और इज के जगह पे was यूज करेंगे। I was listening to music last night, he was listening to music last night, right? और anything which is more than one, हम वहां पे are यूज कर रहे थे प्रेजेंट टेंस में, जो चीज अभी समय है। जैसे I they are listening to music, they are happy to listen music, right? और अगर हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं जो बीत गया है समय, तो they were happy to listen to the music, वो लोग बहुत खुश थे म्यूजिक सुनने में, right? So let's see the example now। See here the use of was and were। Look at the picture। So when we are talking about one person, like we want to say वो बहुत tired है, so we will say he was tired। हम क्यों ऐसा बोलेंगे, because we are talking about one person, so he के साथ was। and ये बच्चे लोग आज स्कूल लेट हो गए थे, ये बहुत टायर्ड हो गया है, बीत गया समय और वो बहुत लेट हो गए थे,
तो हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं. सो वी वर टू लेट. आज हम स्कूल के लिए लेट हो गए थे, राइट. सो वी के साथ वर यूज होगा, राइट. सो नाउ all of you open your book, page number 5050. So there on chapter number 11 we are going to do this exercise. Okay, was and were. Look at the picture and read the sentence given below. The trip was fun. देखो अब एक हम पिक्चर डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं और उसके बारे में, ट्रिप के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं. अब डेफिनेटली हम ट्रिप के बारे में कब एक्सप्लेन करेंगे? जब हमने उस ट्रिप को एंजॉय कर लिया है, गए थे, हम वहाँ से होकर आए हैं और हम अब एक्सप्लेन कर रहे हैं. तो बताओ, वो ट्रिप को जब हमने एंजॉय किया तो क्या अभी वो समय है? नहीं. It is past now. It is gone. That time has gone. So now it's a past tense. So अब हम क्या यूज करेंगे? was and were यूज करेंगे. was यूज करेंगे one चीज के लिए and were यूज करेंगे many के लिए. So the trip was. देखा आपने? ट्रिप, कितने ट्रिप की बात हो रही है? एक ट्रिप. ट्रिप्स नहीं है ना, ट्रिप है, तो was यूज हुआ. The trip was fun. We were in a houseboat on Dal Lake. हम लोग हाउस बोट में थे डल लेक पर. सो वी वर, हम लोग, एक से ज्यादा हो गए तो क्या होगा? वर. इट वॉज अ ग्रेट टाइम. ये बहुत अच्छा समय था. तो समय को हम क्या काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते. तो अगर हम जिस चीज को काउंट नहीं कर सकते उसको हम वन में कंसिडर करते हैं. किस में कंसिडर करते हैं? वन में. सो इट वॉज अ ग्रेट टाइम. आई डैश वेरी हैप्पी. मैं बहुत खुश था. तो मैं कितना हूँ? वन हूँ ना. सो आई वॉज वेरी हैप्पी. माई कजन्स वर इन द मिडल ऑफ द लेक्स ऑन अ शिकारा. मेरे कजन्स, एक कजन की बात हो रही है. कजन्स, कजन में देखो एस लगा है ना, तो मीन्स मोर देन वन पर्सन. सो यहाँ होगा वर. माई कजन्स वर इन द मिडल ऑफ द लेक ऑन शिकारा. दे वर ऑल वेरी हैप्पी. वे लोग सारे बहुत खुश थे. तो दे है, दे मीन्स वे लोग, एक से ज्यादा लोग, तो होगा वर. अब देखो इसमें बहुत लोग WHERE और WERE दोनों को प्रोनाउंस कैसे करते हैं? वेर. लेकिन ये वाला जो WERE है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? वर. इट इज नॉट वेर, इट इज वर, राइट. वेर किसे कहते हैं? कहाँ. WHERE, वेर, कहाँ. वेर इज माई बैग, तब हम बोलेंगे वेर. बट दिस वन WERE क्या है? इसका प्रोनाउंसिएशन है वर. So when we talk about something that happened in the past, we use was or were. We use was with one person, animal, place or thing, and we use were with many persons, animals, places or things. जब हम एक की बात कर रहे हैं तो was होगा. जब हम एक से ज्यादा चीजों की बात कर रहे हैं तो हम were यूज करेंगे, right? But make sure that when we are going to use was or were, in the past tense, things which have happened in the past. So look at the table now. Now beta, the way you learn the table, the same way आपको इस टेबल को भी अच्छे से लर्न कर लेना है. लाइक आई के साथ was, we, you, they, these, ये हो गया many, तो यहाँ होगा were. he, she, नेहा, रणबीर, ये सब है one person, तो होगा was, right? Now fill in the blanks with was or were. Am I clear? one है तो was, many है तो were. चलो करते हैं. fill in the blanks with was or were. How many people dash there are at her house last weekend? तो last weekend मतलब पिछले हफ्ते कितने लोग थे उसके घर में? people. so एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है या एक से ज्यादा, तो क्या होगा? were, right? How many people were there at her house last weekend? Number B, the book dash easy to read. बुक बहुत इजी है पढ़ने में. तो कितनी बुक की बात हो रही है? वन बुक की. क्या अभी पढ़ रहे हैं? नहीं, बुक पढ़ ली तभी तो बता रहे हैं कि बहुत आसान था पढ़ने में. तो वो बीत गया वो समय. तो हम क्या यूज करेंगे? was. Those dash my best trousers which got stolen. So वो मेरे बेस्ट ट्राउजर्स थे जो चोरी हो गए. स्टील, एंड स्टील का पास्ट टेंस है स्टोल,
stolen, and ये थर्ड फॉर्म है, steal, stole, stolen, right? and get का past tense है got, right? देखो यहाँ पास्ट टेंस में वो चोरी हो गए थे, तभी तो बता रहा है कि वो मेरे बहुत अच्छे ट्राउजर्स थे जो चोरी हो गए थे। तो एक से ज्यादा चीज की बात हो रही है। दोज, दीज एंड दोज, यू नो, दीज एंड दोज हम कहाँ यूज करते हैं? मोर देन वन थिंग के लिए तो वी विल यूज वर। द डोडो डैश अ बर्ड विच इज नॉट फाउंड एनीमोर। डोडो एक ऐसा बर्ड है जो अब देखने को नहीं मिलता। कितने डोडोज की बात हो रही है? वन डोडो। डोडोज है या डोडो? वन डोडो ना। what we are going to use was, the dodo was a bird which is not found anymore। मिलता था एक ऐसा बर्ड, अभी तो नहीं मिलता है ना। नंबर ई, dash your teachers at school yesterday। क्या आपके टीचर स्कूल में थे कल? बीते हुए, कल को हम क्या कहते हैं? yesterday। ये बीते हुए टाइम की बात हो रही है, तो क्या होगा? were, क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा टीचर्स की बात हो रही है। We dash not at the library last Wednesday। हम लाइब्रेरी में नहीं थे लास्ट वेंसडे को, पिछले वेंसडे को हम लाइब्रेरी में नहीं थे। हम वी, वी मीन्स मोर देन वन, और हम लास्ट वेंसडे की बात कर रहे हैं तो ये पास्ट टेंस हो गया, तो क्या होगा? वर। नबू जी, यू डैश इन द मार्केट येस्टरडे। कल आप मार्केट में गए थे क्या? येस्टरडे। यू के साथ क्या यूज होगा? वर। यू वर इन द मार्केट येस्टरडे। द वेदर डैश क्लाउडी। वेदर बहुत क्लाउडी है। कितने वेदर्स हैं? वेदर तो एक ही कंडीशन, एक ही वेदर कंडीशन होगा ना सिटी में, कि अलग अलग वेदर कंडीशन होता है? नहीं ना। वेदर इज वन, इट इज काउंटेड एज वन। क्या होगा? द वेदर वॉज क्लाउडी, राइट? Children, this is the exercise that you have to do in your book. Okay, today we are going to only do exercise 1, and remaining exercise, that is exercise number 2 and exercise number 3, we will be doing in the next class. Till then, I expect that you all need to learn the rule. Okay, आप सबको रूल को लर्न कर लेना है अच्छे से, जिससे कि नेक्स्ट क्लास में जब मैं आपसे पूछूं, one by one I will call your names, I will ask you to answer, so that you are able to answer me. And how you will be able to answer me? When you know the rule. Okay, now learn the rule. This is your today's homework. Complete your book exercise. Only exercise number 1. Exercise 2 and 3 we will be doing in the next class. That's all for today. We will meet again in the next class. Till then, just take care of yourself. Bye everyone.